वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ वेनिस बॉडीवाला। और आज का हमारा ये वीडियो जो है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पे है। करेक्ट। टिल नाउ वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स। हमने सारे जो ट्रांसवर्सल लाइन से जो सारे एंगल्स बनते थे ना, करस्पॉन्डिंग हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या को इंटीरियर एंगल्स हो, ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। नाउ अवर फोकस इज टुवर्ड्स this one small topic, and after this we'll try to solve a problem based on the topics which we understood in the last class and this particular today's class. Correct. What do we mean by lines parallel to the same line? So let's take an example. See, understand here, suppose you have a one line AB, another line let's say CD, and one more line let's say EF, and there is a transversal, let me say PQ. Correct. What the statement says? Line parallel to the same line. This is the concept कि अगर कोई आपकी लाइन है जो किसी सेम लाइन से पैरेलल है। करेक्ट। I'll write the theorem or for you so that you can understand exactly what does theorem says. Lines which are parallel to the same line. Lines which are parallel to the same lines are parallel to each other. Are parallel to each other. We all know what are the how we can identify whether the lines are parallel or not. Correct. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? If their perpendicular distance remains same और if the line never intersect each other, है ना, उन सिचुएशन से हमें पता चलता है lines are parallel. So here consider the lines CD and EF. Lines CD or EF are parallel to the same line with the AB. So what I am going to say is AB parallel to CD and AB parallel to EF. अगर AB CD से पैरेलल है, AB EF से पैरेलल है, then I can say CD parallel to EF. Correct. AB parallel to CD, AB parallel to EF, then I can easily say that CD and EF also parallel. Now you may be thinking ऐसा कैसे हो सकता है? तो I'll give you one small example. Suppose मान लो कि this is angle 1, this is angle 2 and this is angle 3. Correct. So अगर मैं ऐसा बोलूं कि corresponding angle of AB and CD are equal, that is angle 1 and angle 2, then AB and EF parallel, so their corresponding angles are also equal. So अगर आपका angle 1 angle 2 के साथ equal है, angle 1 angle 3 के साथ equal है, तो I can definitely say that कि angle 2 और angle 3 भी equal होंगे. अब अगर आपके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि लाइन्स आर पैरेलल. Now let's try to understand the problem based on the concept which we have understood in the last video and the today's videos, line parallel to same line. Correct. If you look at this question, what it is given in figure, if PQ parallel RS, so PQ and RS are parallel. First thing we have measure angle MXQ. MXQ 135 and angle MYR 40, and we are supposed to find angle XMY. Now how can we do that? Correct. So ऐसे प्रॉब्लम में देखो आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा. You need to add something. You need to do in such a way that it helps you to get to the answer. It is anyhow going to be difficult for us to get this whole angle at the same time in the single method, in a single way. Correct. So what we are going to do, we are going to draw a line which is parallel to PQ, which is parallel to PQ and passing through the point M, something like this. Correct. And let me say this line is nothing but AB. So what I did is construction. क्या किया construction में? Draw AB parallel to PQ passing through point M. Now अगर AB PQ AB को parallel है, now PQ is given parallel to RS. Correct. एंड हमने अभी
ड्रॉ किया कि PQ पैरेलल टू AB, सो आई कैन इजीली से दैट RS पैरेलल टू AB. Am I clear? This concept which we understood today itself, कि अगर एक लाइन इसके साथ पैरेलल है, the same line is parallel with this one, then these two lines are parallel to each other, है ना. आपको अगर रीजन लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हो, two lines are parallel to the same line, correct. Now how can we proceed further? अभी भी हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है ये एंगल और ये एंगल. Now let's say we want to find this angle and this angle. Means we want to find sum of angle XMB and sum of angle YMB, so that I can get the value of XMY. So observe here, correct. Now it is very simple to understand that this is a transversal because I know that PQ and AB are parallel, correct. So how we are going to start? Now as PQ parallel to AB, XM is a transversal, then angle MXQ plus angle XMB is equals to 180 degree, that is co-interior angle. You remember, right? Angle on the same side of transversal, है ना. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के दो एंगल का सम करूंगा तो 180 आ जाएगा. नाउ बट व्हाट डू आई नो, दैट एंगल MXQ is equals to 135 degree, implies 135 degree plus XMB is equals to 180. तो मुझे एंगल XMB कितना मिलेगा, 180 minus 135. So my angle XMB is going to be 140 or 45. Correct. So this is one of the angle we got, XMB. Now still we are still required to find this particular angle, correct. चलो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्विकली आप लोग लिख लेना, अगर बाकी हो तो प्लीज रिवाइंड करके लिख लेना. आई एम प्रोसीडिंग इन द प्रॉब्लम फर्दर. सिंपल. अगेन आई नो दैट के हमने यहाँ पे प्रूव किया कि RS और AB भी पैरेलल है. ऑल्सो RS पैरेलल टू AB, देन आई कैन से एंगल BMY इज इक्वल्स टू एंगल MYR. कौन से एंगल हो गए, अगर ये आप देखो तो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल, दीज आर दी अल्टरनेट एंगल्स. आप चाहो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो, करेक्ट. सो देयरफॉर एंगल BMY, MYR कितना दिया हुआ है 40. सो आई गॉट BMY 40 डिग्री. सिंपल. नाउ जस्ट सिंपली एडिशन ऑफ दिस टू. कौन से एडिशन ऑफ टू मतलब, नाउ angle XMY which is I want to find, correct, can be written as angle XMB plus angle BMY. तो XMB कितना है 45, BMY कितना है 40. 45 plus 40 will be 85 डिग्री. सो मुझे मिल गया एंगल XMY is equals to 85 डिग्री, करेक्ट. सी आई नो कि मेरे पास जगह कम होने की वजह से मुझे सम्स आधा अधूरा करके रफ करके वापस करना पड़ रहा है. दैट डजंट मीन कि वो आपको डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, करेक्ट. आप लोग पहले समझ ही रहे हो. ऐसा हो पॉज करो वीडियो, उतना नोट डाउन कर लो, देन अंडरस्टैंड द फर्दर पार्ट, करेक्ट. सो यू कैन हैव अ टाइम टू डू दैट बिकॉज इट इज एन यूट्यूब वीडियो, सो यू हैव द लिबर्टी. You can pause at any point, you can continue at any point, correct. So please pause the video and note it down. Now let's try to understand example number 5. If a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. Now if you read the question, you may be thinking ये क्या बोला है, क्या करना है. ध्यान से इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइन बना देते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, करेक्ट. सो लेट्स से दिस टू लाइंस आर, हम लोग
नाम वाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ये पी क्यू आ गए, लेट मी से ई एंड एफ, करेक्ट। सो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, है ना, ट्रांसवर्सल ने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया कुछ इस तरह से कि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमें ये देखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर में देखना है, करेक्ट। सो इफ आई से दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, let's say this one and this one, which I am talking about, PEB and EFD. These are corresponding angle. You can take any pair you want. You can go for PEA, EFC. Even you can go for something like this, BEF, DFQ. कोई भी पेयर लेनी है, करेक्ट, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोई भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर। सो मैं क्या कर रहा हूं, इस करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं और सेम वे इस करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर। क्यों? बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर का मतलब दो साथ में होना चाहिए, है ना। दीज आर दी पेयर, पीईबी एंड ईएफडी, तो वो पेयर में ले लिया। और साथ ही साथ क्वेश्चन ने बोला है, इसको नाम भी दे देते हैं, लेट्स से आर एंड एस। साथ ही साथ क्वेश्चन ने बोला है कि ये ER और FS आर पैरेलल, यानी कि हम जो दो बाइसेक्टर बना रहे हैं ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो दोनों पैरेलल है। तो ये प्रूव करना है कि टू लाइंस यानी कि AB और CD पैरेलल है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट डिवाइड द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स, ट्राई टू गेट द आइडिया कि क्या दिया हुआ है, एंड देन सी व्हाट वी हैव टू फाइंड, करेक्ट। सो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। कैसे? तो कि भाई PQ इज अ ट्रांसवर्सल, करेक्ट। PQ जो है वो ट्रांसवर्सल है, विच इंटरसेक्ट्स लाइंस AB एंड CD एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। एक चीज हो गया, करेक्ट। ER is the bisector of, okay, let me write like this, एक एक करके लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, करेक्ट। ER and FS are the bisector of angle PEB and angle EFD respectively, करेक्ट। सो जितना क्वेश्चन ने डेटा दिया था वो सब हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया कि भाई PQ हमारा ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है AB और CD को एट पॉइंट E एंड F। फिर हमने बोल दिया कि भाई ER और FS जो है वो हमारे बाइसेक्टर है ऑफ एंगल PEB एंड EFD रिस्पेक्टिवली। सो ये भी हो गया। अच्छा, साथ में ये भी बोला है also ER is parallel to FS, क्योंकि आपको बोला ना कि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, है ना। तो ये भी हो गया। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। ये आपका गिवन सब, ये हमें प्रूव करना है। और अब करेंगे इसका प्रूफ। अब प्रूफ करे तो करे कैसे, है कि नहीं? तो एज आई नो, क्या पता है, रे ER, लेट से अच्छे से लिखते हैं, रे ER इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PEB, therefore angle PER is equals to half of angle PEB. Am I right? क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स। दो इक्वल एंगल में वो उसे डिवाइड करता है। इसका मतलब कि ये जो छोटा सा एंगल है PER विल बी हाफ ऑफ द एंगल PEB. Am I clear? Similarly, ray FS is the bisector of angle EFD.
तो हम क्या बोल सकते हैं कि therefore एंगल EFS is half of angle EFD. Let me say this is equation 1, this is equation number 2. करेक्ट, ये दोनों डेटा हमें मिल गए, ये इतना हमारा हो गया. करेक्ट. अब एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ऑल्सो कि हमारे पास बोर्ड की स्पेस थोड़ी सी कम है, सो मैं प्रॉब्लम आधा करूंगा, फिर थोड़ा रफ करूंगा, फिर वापस करूंगा. यू हैव द एडवांटेज, यू कैन पॉज इट राइट नाउ एंड यू कैन नोट इट डाउन. करेक्ट. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ माई प्रॉब्लम. सो मुझे ये दोनों एंगल मिल गए. अब क्वेश्चन ने ऐसा भी तो बोला है ना कि ये दोनों पैरेलल है ना. तो लेट्स टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स विच इज गिवन पैरेलल. सो आई नो दैट ER parallel FS and PQ is a transversal. So kind of क्या हो गया, देखो ये ट्रांसवर्सल वाली लाइन है, ER और FS पैरेलल है ना. इसका मतलब कि एंगल PER is equals to एंगल EFS. करस्पॉन्डिंग एक्सियोम. आर यू गेटिंग मी? क्यों करस्पॉन्डिंग एक्सियोम बोल रहा हूं? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल ही हो या वर्टिकल ही हो. इट कैन बी एनी हाउ, कोई भी तरीके से पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से कोई लाइन ट्रांसवर्सल पास होनी चाहिए. तो हम सारे जो हमारे रूल्स है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे PER और EFS ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए बिकॉज ER एंड FS आर पैरेलल एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल. अब क्या करते हैं कि इन दोनों में ये इक्वेशन 1 और 2 पे से रख देते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिलेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल PEB इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल EFD. करेक्ट. अब जैसे ही मुझे दोनों 1/2 टाइम्स दिख रहे हैं तो मैं दोनों का हाफ हाफ रिमूव कर सकता हूं. आई कैन कैंसल आउट हाफ हाफ. करेक्ट. सो चलो ये 1/2 कट. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज PEB इज इक्वल्स टू EFD. करेक्ट. यानी कि ये एंगल PEB एंड EFD ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल. कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सियोम. एम आई राइट? क्या बोलेंगे? एज द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड PQ is transversal, then what I can say is AB parallel to CD. अब चाहो तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, है ना, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सियोम. जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल पास हो रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. अब यहाँ पे उसका कन्वर्स है, क्या है कि हमारे पास दो लाइन है. करेक्ट. वी हैव टू लाइंस इन विच करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, और उसमें से ट्रांसवर्सल भी पास हो रही है. then we can easily say that these two corresponding angles are equal, that means these two lines are parallel. बस वही यहाँ पे हमने लिखा converse of corresponding axiom. So this is how we are solving this kind of problem. Please always be ready in such a way that we should read the question, divide it into such a parts that we can draw a figure, because every time figure is available, not necessary, है ना. जस्ट मेक श्योर कि आपको फिगर के बिना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में समझ में आए, बिकॉज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज क्वाइट मोर इम्पोर्टेंट देन द सॉल्विंग पार्ट. ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्विंग तो हो ही जाना है. लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो फिर आप कुछ भी ऐसा करके आते हो जिसकी वजह से इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द पेपर चेकर एंड दैट विल बी अ लॉस. करेक्ट. वो बहुत बड़ा लॉस होता है, बिकॉज वंस पेपर चेकर रियलाइज दैट यू डोंट नो एंड यू आर ब्लफिंग. अगर अच्छे से भी लिखा होगा ना कहीं से छोटी छोटी मिस्टेक्स ढूंढ के भी आपके आधे आधे मार्क्स तो काट ही लेते हैं. करेक्ट. सो नेवर गिव देम आइडिया कि हम ब्लफ कर रहे हैं. जो भी करो कॉन्फिडेंटली करो, लेकिन कुछ इस तरह से कि सामने वाले को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं उसको आता है, मे बी छोटी मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया, है ना. सो
Please try to do this kind of problem at least twice at home. Correct? You can pause the video and note it down. Now let's try to understand example number 6. In figure, AB parallel to CD and CD parallel to EF. So AB and CD parallel, CD and EF parallel. Also EA is perpendicular to AB. That is why this is the shape है ना, एंगल 90 होता था हम ऐसा बनाते. If BEF this angle is 55, then find the values of x, y, z. Now how can we do this? So see, हमें सिंपली x, y और z फाइंड करना है. सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि x और y इक्वल हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज वी नो AB एंड CD आर पैरेलल, सो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल. सीधी बात है. चलो वो तो ठीक है, लेकिन दोनों में से एक तो पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, तो मिलेगा. चलो पहले y के लिए कुछ सोचते हैं. क्यों y? बिकॉज आई अगेन नो दैट CD एंड EF पैरेलल. करेक्ट. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, कौन सा ट्रांसवर्सल बनेगा अगर CD और EF पैरेलल है? तो DE इज ट्रांसवर्सल. सो DE इज अ ट्रांसवर्सल intersect CD and EF. करेक्ट. एंड नहीं लिखते, दो बार एंड में कंफ्यूज हो जाएंगे. CD एंड EF. ऑल्सो CD parallel EF. Therefore y plus 55 is equals to 180. अरे ये क्या हो गया? तो अगर ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों एंगल है, तो कैन वी से दिस इज को इंटीरियर एंगल्स, है ना. सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल. सो आई विल गेट y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55. 180 में से 50 जाएंगे तो 130, और 130 में से 5 जाएंगे तो 125. Now x equals to y. क्यों? Because AB parallel to CD and x and y are corresponding angles. करेक्ट. अब आप चाहो तो इसको अंदर प्रॉब्लम में भी लिख सकते हो, रादर देन गिविंग इन द रीजन यू कैन राइट हियर. नाउ एज AB पैरेलल टू CD, करेक्ट, AB और CD पैरेलल है, सो x एंड y आर इक्वल. क्यों? तो करस्पॉन्डिंग एंगल x जो. नाउ x और y इक्वल, इसका मतलब कि x की वैल्यू भी 125 डिग्री. चलो अच्छी बात है. तो यहां तक तो चलो x और y मिल गया, लेकिन अब z ढूंढना है ना. तो प्लीज डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक कि आप डायरेक्टली बोल दो यहाँ पे ये एंगल तो 90 होगा ना. नहीं. Why I am telling you may be thinking सर ये 90 ही होना है, गारंटी. आई नो डेफिनेटली वो 90 होना है, बट क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि AE और EF परपेंडिकुलर है? नहीं. क्वेश्चन ने जो बोला है वो ये है कि AB और EA परपेंडिकुलर है. करेक्ट. AB और CD पैरेलल है, CD और EF पैरेलल है. इसका मतलब कि AB और EF भी पैरेलल हो गए. अब अगर ये दोनों पैरेलल है और AB को ये परपेंडिकुलर है, मतलब EF को भी परपेंडिकुलर अब हो जाएगा, तो हम इन्हें को इंटीरियर एंगल के हिसाब से कर सकते हैं, कंसीडरिंग AE एज ट्रांसवर्सल. प्लीज ध्यान दो, यहां पे थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है. वी हैव AB पैरेलल टू CD and CD parallel to EF implies AB parallel to EF. क्यों? Lines parallel to same line है कि नहीं? तो वो भी पैरेलल हो जाना है. चलो अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गया, ऑल्सो EA परपेंडिकुलर AB, देन क्या करेंगे हम? एंगल BAE प्लस एंगल AEF, इनका सम होगा 180 डिग्री, है ना. BAE और AEF इनका सम होगा 180. क्यों? बिकॉज दे आर नाउ को इंटीरियर एंगल. बिकॉज दे आर नाउ को इंटीरियर एंगल. BAE हमें पता है 90. करेक्ट. मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा रफ करके आपको वो प्रॉब्लम का एंडिंग पार्ट भी समझा देता हूं. करेक्ट.
So I got BAE. I already have available that angle BAE is 90 plus AEF is divided into two parts. That is Z plus 55 is equals to 180. So Z कितना होगा 180 minus 90 minus 55. 180 में से 90 गए 90 minus 55. 90 में से 55 जाएंगे तो कितना बचेगा 560 और 30 35. So I got Z equals to 35 degree. Are you getting me? है ना. देखो यहाँ पे मैं भी कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर Y और Z तो अल्टरनेट है. नहीं बच्चों, नहीं, वो अल्टरनेट नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो AE को पैरेलल है. और अगर AE को पैरेलल कोई लाइन होती और वहां एंगल Y होता तो वो पॉसिबल होता. यहाँ पे नहीं होगा. सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक के Y और Z तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, वो दोनों भी इक्वल होंगे तो Z भी 125. डोंट डू दैट. दैट काइंड ऑफ थिंग विल कमिट अ मिस्टेक और उससे हमारे मार्क्स का नुकसान होता है. करेक्ट. सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आप इन 3 प्रॉब्लम के बेस पे ट्राई करना एक्सरसाइज. आई विल डेफिनेटली पुट अ वीडियो, है ना, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके वीडियो रखूंगा. If some problem is way too much easier, then I can give you that as homework. But other than that, I will solve all the problem. But before that, you people should try के how they are being solved. Correct. Put your efforts, put your thoughts into it, है ना. देखो angle समझो, corresponding alternate interior, co-interior angles and all those things, which will help you to develop your thinking process. Correct. अगर मैं कोई प्रॉब्लम समझा रहा हूँ और वो आपको समझ में आ रहा है और आप कर ले रहे हो, that is good. बट अगर मेरे समझाने के बाद किसी क्वेश्चन को देख के आप खुद से कर रहे हो, दैट इज बेस्ट. करेक्ट. सो प्लीज डू दैट. आई विल डेफिनेटली पुट अ वीडियो, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और एल्स वीडियो इज अबाउट टू एंड ओनली. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ अ गुड नॉलेज, गुड कंसेप्ट. Correct. So please thank you so much. Thank you so much for watching.